ہم ایک اور سچی، کڑوی لیکن حقیقت پسند ویڈیو کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان خیالات کو توڑ کر رکھ دیں گے جو دہائیوں سے سیاسی طور پر درست سمجھے جاتے رہے ہیں، کیونکہ ہم خیالی باتیں نہیں کر رہے بلکہ حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ہر مہینے کم از کم ایک بار دوبارہ دیکھیں، تاکہ آپ یہ نہ بھولیں کہ کامیابی یا دولت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ درکار ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دولت اور کامیابی ہمیشہ ایک قیمت مانگتی ہے، اور اگر آپ خود اس سفر پر نکلنے والے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان قربانیوں سے واقف ہوں اور پہلے سے منصوبہ بندی کریں۔ دولت مند بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ ایک عام زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن ہم جھوٹ بول کر یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ زندگی صرف کوسے قضا اور دھوپ چھاؤں سے بھری ہوتی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد جب آپ کسی کامیاب یا امیر انسان کو دیکھیں گے تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں گے کہ اس نے وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ قربان کیا ہوگا۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر بات پر جلدی ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کی پہلی ویڈیو ہے، تو بہتر ہوگا کہ ابھی ویڈیو بند کر دیں اور کوئی اور ویڈیو دیکھ لیں۔ سنا ہے یوٹیوب پر پیارے پیارے جانوروں کی بہت سی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں۔ اب جو فہرست ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ مختلف ملکوں، قوموں اور ثقافتوں کے ان لوگوں کی اوسط حقیقت پر مبنی ہے جنہوں نے دولت یا کامیابی حاصل کی۔ ہم نے ان سب کو ایک فہرست میں اکٹھا کر دیا ہے تاکہ آپ آسانی سے انہیں سمجھ سکیں اور مستقبل کے لیے تیار ہو سکیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امیر بننے کے لیے آپ کو یہ تمام قربانیاں دینا پڑیں گی، لیکن ہم یقین سے کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کامیاب یا امیر شخص ایسا نہیں جس نے ان میں سے کچھ نہ کچھ قربانیاں نہ دی ہوں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 15 چیزیں کون سی ہیں جن کی قربانی دے کر لوگ امیر بنتے ہیں۔ قربانی نمبر 1، خاندان۔ خاندان کی قربانی وہ حقیقت ہے جس کا سامنا اکثر کامیاب افراد کو اپنے سفر کے آغاز میں کرنا پڑتا ہے۔ امیر بننے کا سفر پوری توجہ، توانائی اور وقت مانگتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو خاندان کی تعمیر اور نگہداشت میں بھی لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے کامیاب افراد شادی اور بچوں کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں جب وہ مالی اعتبار سے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں۔ تحقیقات سے ثابت ہے کہ شادی اور بچوں کی ذمہ داریاں کم عمر میں لینے سے مالی ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، خاص طور پر جب انسان ابھی خود معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ جیسے ہی بچہ آتا ہے زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وقت، پیسہ اور توانائی اب مکمل طور پر خاندان کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں اور خواب پسے پشت چلے جاتے ہیں۔ یہ بات تلخ ہے مگر سچ۔ اگر آپ کسی بڑے مقصد کے پیچھے ہیں تو ممکن ہے آپ کو کچھ وقت کے لیے خاندان سے دور رہنا پڑے، مگر یاد رکھیے یہ قربانی ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ کچھ سالوں کے لیے ہے۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تب آپ ایک بہتر، پرامن و خوشحال زندگی اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکیں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ وہ شخص بننے کو تیار ہیں جو اپنے خوابوں کے لیے وقتی طور پر اپنوں سے دور رہنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ قربانی نمبر 2، صحت۔ کامیابی کی راہ میں جو سب سے عام مگر سب سے زیادہ نظر انداز کی جانے والی قربانی ہے وہ ہے صحت۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اکثر کامیاب لوگ اپنے جسم اور دماغ کی قیمت پر دولت کماتے ہیں۔ کاروبار، سٹارٹ اپ یا کسی خواب کے پیچھے دوڑنے والا شخص دن رات کام کرتا ہے، نیند قربان کرتا ہے، متوازن غذا کو وقت نہیں دیتا اور ورزش کو غیر ضروری سمجھتا ہے۔ نتیجہ تھکن، ذہنی دباؤ، بے چینی اور رفتہ رفتہ صحت کی خرابی۔ ایک تحقیق کے مطابق 60% سے زائد انٹرپرنورز نیند کی کمی، پیٹ کے مسائل یا بلند فشار خون جیسے مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ مسلسل ذہنی تناؤ میں ہوں، ہر لمحہ خطرات سے کھل رہے ہوں اور آپ کی زندگی کا ہر دن کسی جنگ کی مانند ہو تو جسم تھکنے لگتا ہے اور ذہن بوجھل ہو جاتا ہے۔ قربانی نمبر 3، دوست۔
कामयाबी की राह में तीसरी बड़ी कुर्बानी दोस्त हैं। ये वो पहलू है जिस पर कम ही लोग बात करते हैं, क्योंकि ये तकलीफ दे भी है और सच भी। जब कोई शख्स बड़े ख्वाब देखता है तो वो खुद को ऐसे सफर पर डाल देता है जो अकेला होता है, गैर मामूली होता है और आम लोगों की सोच से हटकर होता है। ऐसे में अक्सर पुराने दोस्त साथ नहीं चलते। क्यों? क्योंकि वो आपकी रफ्तार को नहीं समझते, आपकी कुर्बानियों को नहीं मानते और बाज़ औक़ात आपकी कामयाबी को हसद या मजाक का निशाना बनाते हैं। तहकीक के मुताबिक कामयाब अफराद का इनर सर्कल नहायत छोटा होता है। औसतन सिर्फ 2 करीबी दोस्त होते हैं और वो भी वही होते हैं जो खुद भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, आगे बढ़ने में मदद देते हैं और मनफी सोच से दूर रखते हैं। कामयाब बनने का मतलब ये नहीं कि आप दोस्ती के काबिल नहीं रहे, बल्कि यह है कि आपने इंतखाब करना सीख लिया है। वक्त, तवानाई और जज्बा उन पर खर्च करना जो आपको बुलंद करते हैं, ना कि गिराते हैं। याद रखें, हर दोस्त नहीं होता ख्वाबों का हमदर्द। कामयाबी का रास्ता बाज़ औक़ात आपको तन्हा करता है, मगर इसी तन्हाई में आप काबिल कदर बन जाते हैं। कुर्बानी नंबर 4, मशगले। कामयाबी का ख्वाब देखने वालों के लिए एक और सख्त मगर लाजमी कुर्बानी है मशगले छोड़ना। हम सबको अपने मशगले प्यारे होते हैं। कोई तस्वीरें बनाता है, कोई शतरंज खेलता है, कोई नेटफ्लिक्स पर ड्रामे देखता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपके ये मशगले आपको कामयाबी के करीब ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं? दुनिया की कई बड़ी शख्सियत जैसे जेफ बेजोस, एलॉन मस्क और ओपरा विनफ्री ने इब्तदाई सालों में हर वो सरगर्मी तर्क कर दी थी जो सिर्फ वक्त खाती थी मगर नतीजा ना देती थी। तहकीक से साबित हुआ कि जब आप किसी चीज में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 10,000 घंटे देने पड़ते हैं। तो फिर ये 10,000 घंटे आप प्ले स्टेशन, नेटफ्लिक्स या क्रिकेट में लगा रहे हैं या अपने ख्वाब पर। कामयाबी का रास्ता मुख्तसर नहीं होता, और अगर वक्त आपका सबसे कीमती सरमाया है तो मशगले वो खर्च हैं जो आपको गरीब रखते हैं, ज़हनी तौर पर भी, माली तौर पर भी। ये सच है, जब आप अपने ख्वाब के करीब होंगे तब आप दोबारा वो सब कुछ कर सकेंगे, सिर्फ तब जब कामयाबी आपकी हौसला अफजाई करे, ना कि मशगले आपकी राह की रुकावट बने। कुर्बानी नंबर 5, वक्त। वक्त वो वाहिद दौलत है जो किसी के पास अजाफी नहीं होती, और कामयाबी के तलबगार के लिए कुर्बानी सबसे कीमती और सबसे जरूरी है। दुनिया के हर कामयाब शख्स ने अपने वक्त का हिसाब किताब रखा है और सिर्फ वही काम किए हैं जो उसे मंजिल के करीब लाते हैं। आप जिस भी बड़े कामयाब इंसान की सवाने उम्री पढ़ेंगे, आपको एक चीज वाज़े नजर आएगी, उन्होंने साल हा साल की मेहनत और दिन रात की मशक्कत से कामयाबी हासिल की है। तहकीक कहती है, किसी भी शख्स को माली आजादी या अजीम सतह की कामयाबी हासिल करने में 7 से 10 साल मुसलसल मेहनत दरकार होती है, और इन सालों में वो लोग वो सब कुछ छोड़ते हैं जो दूसरों को आर्जी खुशी देता है। पार्टीज, लंबी नींद, सोशल मीडिया और बिला मकसद वक्त का ज़िया। याद रखें, वक्त गुजर जाएगा, या तो वो आपको कामयाब बनाएगा या सिर्फ बड़ा। एक तहकीक के मुताबिक अगर आप रोजाना सिर्फ 3 घंटे सीखने और काम करने में लगाते हैं तो एक साल में आपके पास 1000 घंटे होंगे जो आपको किसी भी मैदान में गैर मामूली बना सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या आप आर्जी मजे के बदले अपना मुस्तकिल मकाम कुर्बान कर रहे हैं, या वक्त की कदर जानकर खुद को किसी ऐसे मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहे हैं जहां दूसरों के पास सिर्फ हसरत होगी? कुर्बानी नंबर 6, खुशी। खुशी कुर्बान करोगे तो कामयाबी का रास्ता खुलेगा। ये सुनकर अजीब लगता है मगर सच यही है। कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक आर्जी खुशी का ताक़ुब है। नेटफ्लिक्स की एक किस्त, सोशल मीडिया पर लाइक्स, देर रात दोस्तों के साथ हैंग आउट, ये सब वक्ती खुशी देते हैं लेकिन तवील मुद्दती कामयाबी छीन लेते हैं। तहकीक कहती है कि दुनिया के कामयाब तरीन अफराद अपनी डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी खुशी को मौखर करने की महारत में माहिर होते हैं। एक मशहूर तजर्बा मार्शमैलो टेस्ट में देखा गया कि जिन बच्चों ने फौरी खुशी से बचकर इंतजार किया वो बड़े होकर ज्यादा कामयाब और खुशहाल साबित हुए। कामयाबी का तकाजा है कि आप कुछ सालों के लिए अपनी आसानियां, ख्वाहिशों और तफरीहों को कुर्बान करें ताकि आप आगे चलकर ऐसी जिंदगी जिएं जो दूसरों के लिए ख्वाब हो। असल खुशी वो होती है जब आप बगैर किसी माली या समाजी दबाव के अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं
और वो खुशी तब ही मिलती है जब आप कुछ सालों के लिए अपनी फिलहाल खुशी की कुर्बानी देते हैं। याद रखें, हर वक्त खुश रहना असल में खुशी की सबसे बड़ी रुकावट है। कुर्बानी नंबर 7, नींद। अगर आप सोने को तरजीह देते हैं तो कामयाबी को कुर्बान करना पड़ेगा। नींद जिस्म की जरूरत है, लेकिन जब आप गैर मामूली कामयाबी चाहते हैं तो इस जरूरत को नज़्म ज़ब्त में लाना पड़ता है। कामयाब लोग नींद को खत्म नहीं करते बल्कि वो इसे मैनेज करते हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि नींद की कमी वक्ती तौर पर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, लेकिन अगर मुसलसल नींद कुर्बान की जाए तो सेहत, ज़हनी ताकत और फैसला साजी पर मनफी असर पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया के बहुत से अरबपति जैसे एलॉन मस्क, जैक मा और डोनाल्ड ट्रंप अपने आगाज में 4 से 5 घंटे ही सोते थे ताकि दिन के 18-20 घंटे काम में लगा सकें। कामयाबी के सफर की शुरुआत में आपको अपने सोने जागने के निजाम को मकसद के ताबे करना होगा। ये वो वक्त होता है जब हर लम्हा कीमती होता है और नींद अक्सर सबसे पहले कुर्बान की जाने वाली चीज बन जाती है। आपको फैसला करना होगा, क्या आप 8 घंटे की पुरसुकून नींद चाहते हैं या वो जिंदगी जिसमें हर सुबह आपका ख्वाब हकीकत बनने के करीब हो। याद रखें, जब तक ख्वाब जागते नहीं, नींद से बड़ी दुश्मनी और कोई नहीं। कुर्बानी नंबर 8, अपनी मौजूदा शख्सियत। अगर आप वही रहेंगे जो आप हैं तो वो नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। दौलतमंद बनने की राह सिर्फ माली कुर्बानियों से नहीं, अंदरूनी तब्दीली से भी गुजरती है। अक्सर लोग वो सब कुछ चाहते हैं जो अमीर लोग रखते हैं, लेकिन वो खुद को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं होते। हकीकत यह है कि आपकी मौजूदा शख्सियत, मौजूदा सोच, मौजूदा आदत आपको वो नताइज दे रही हैं जो आपके पास आज हैं। अगर आप इनसे आगे कुछ चाहते हैं तो अपनी शख्सियत को अपडेट करना होगा, बिल्कुल जैसे किसी सॉफ्टवेयर का नया वर्जन लॉन्च होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके अंदर खुद पर कंट्रोल नहीं, वक्त की कदर नहीं या कोई क्लियर विजन नहीं है तो ये सारी क्वालिटीज अमीर बनने की राह में रुकावट है। हर कामयाब शख्स ने अपनी पहचान, सोचने का अंदाज और रद्द अमल देने के तरीके को जानबूझकर बदला। ये कुर्बानी आसान नहीं होती। अपने अंदर की आना, गलत फहमियां और कमजोरियां देखना तकलीफ दे होता है, लेकिन यही वो तब्दीली है जो आपको आम लोगों से मुमताज करती है। याद रखें, दौलत आपकी जेब में तब आती है जब अजमत आपके अंदर आती है। कुर्बानी नंबर 9, तफरी। जो लोग सिर्फ तफरी तलाश करते हैं वो कामयाबी को कभी नहीं पकड़ पाते। अमीर बनने का सफर एक सादा सा असूल मांगता है, या तो आप तफरी में वक्त जाया करें या मुस्तकबल में दूसरों को हैरान करें। तफरी कोई गलत चीज नहीं, लेकिन जब आपकी जेब खाली हो, मंजिल दूर हो और मुकाबला शदीद हो तो हर वो लम्हा जो फिल्मों, गेम्स या बेमकसद सोशल मीडिया पर सर्फ होता है, दरअसल ख्वाब की कीमत में दिया जाता है। हकीकत यह है कि कामयाब लोग तफरी को इनाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आदत के तौर पर नहीं। वो जानते हैं कि नेटफ्लिक्स की 10 एक साथ, PUBG की 5 घंटे की मश्क या इंस्टाग्राम की एंडलेस स्क्रॉलिंग उनके ख्वाबों को दिनों, हफ्तों और महीनों से दूर ले जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी के सिर्फ इब्तदाई 5 से 7 साल तफरी तर्क करके काम में लगा दें तो वही कामयाबी आपको ऐसी तफरी दे सकती है जिसका आज सिर्फ ख्वाब है। अपनी मर्जी से दुनिया घूमना, महंगे तरीन शोज देखना, अपने ख्वाबों का घर बनाना, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना। याद रखें, तफरी तब खूबसूरत लगती है जब वो आपके फैसले से हो, मजबूरी से नहीं। कुर्बानी नंबर 10, इस्तेहकाम। कामयाबी एक झूला है जिसमें बैठकर सुकून नहीं, हिम्मत चाहिए। अमीर बनने की राह में सबसे पहले जिस चीज को कुर्बान करना पड़ता है वो है इस्तेहकाम, यानी एक महफूज, मुतवाजन, आरामदेह जिंदगी। जब कोई शख्स कहता है कि वो अमीर बनना चाहता है तो उसे यह भी समझना पड़ेगा कि उसे कई बार नौकरी छोड़नी पड़ेगी, नई जगहों पर जाना पड़ेगा, नामालूम खतरात उठाने पड़ेंगे और जिंदगी को बार बार नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। इस्तेहकाम की ख्वाहिश इंसान की फितरी जिबिलत है, मगर तरक्की कभी इस्तेहकाम के अंदर पैदा नहीं होती। जो लोग सिर्फ सेफ जोन में रहना चाहते हैं वो कभी ऐसे तजर्बात नहीं करते जो उनकी सोच, सलाहियत और दुनिया दोनों को बदल दे। यही वजह है कि कामयाब लोगों की कहानियों में अक्सर एक जुमला होता है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बस ख्वाब साथ था। अगर आप आज इस्तेहकाम के लिए अपने ख्वाब को रोके बैठे हैं
در हकीकत आप एक छोटी कश्ती में तूफान से बच रहे हैं, लेकिन कभी समंदर के पार नहीं पहुंच पाएंगे। अमीर बनने का मतलब है हर दिन नई गैर यकीनी सूरत हाल, हर माह एक नया चैलेंज और हर लम्हा खुद पर यकीन। अगर आप तैयार हैं कि इस इस्तेहकाम को कुर्बान करके बड़ा खेल खेलें तो कामयाबी आपकी राह तक रही है। कुर्बानी नंबर 11, आमदनी। जो लोग हर रुपया अपने ऊपर खर्च करते हैं वो कभी इस मकाम तक नहीं पहुंचते जहां वो दूसरों को तनख्वाह दे सके। अमीर बनने का सबसे नजरअंदाज शुदा मगर फैसला कुन राज ये है कि इब्तदाई बरसों में अपनी आमदनी को खुद पर खर्च करने की बजाय अपने मिशन में लगाया जाए। ज्यादातर लोग तनख्वाह या कमाई को फौरी तस्कीन, तफरी या दिखावे में उड़ा देते हैं, मगर वो लोग जो आगे जाकर अमीर बनते हैं वो अपने आप को आखिरी नंबर पर रखते हैं। एप्पल, अमेज़न और टेस्ला जैसे अदारे इस असूल की जीती जागती मिसालें हैं। इन कंपनियों के बानियों ने पहले कई साल ना खुद तनख्वाह ली ना ऐश किया, बल्कि हर आमदनी दोबारा कंपनी में लगाई ताकि तरक्की की रफ्तार रुकने ना पाए। अगर आप अपने हर अजाफी रुपए को अपने ख्वाब, स्किल, कारोबार या सरमायाकारी में लगाते हैं तो वक्त के साथ वही मामूली रकम मुस्तकबल की फाउंडेशन बन जाती है। याद रखें, अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता, बल्कि वो होता है जो अपनी कमाई से ज्यादा पैदा करता है। जो लोग जल्दी में होते हैं वो हमेशा देर से पहुंचते हैं, और जो हर कमाई का कुछ हिस्सा आइंदा के लिए बचा लेते हैं वही कल दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। कुर्बानी नंबर 12, आरामदेह जिंदगी। कामयाबी हमेशा सुकून के इलाके, कंफर्ट जोन से बाहर जन्म लेती है। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आराम तलबी से जंग लड़नी होगी। आरामदेह जिंदगी अक्सर एक सुनहरी पिंजरे जैसी होती है। आराम तो देती है मगर परवाज से रोकती है। जो लोग वक्त से पहले अच्छी गाड़ी, महंगा फोन, आरामदेह अपार्टमेंट और ब्रांडेड चीजों की दौड़ में लग जाते हैं वो दरअसल अपनी माली तरक्की के दुश्मन बन जाते हैं। दूसरी तरफ कामयाब अफराद की जिंदगी का इब्तदाई दौर अक्सर रैमन नोडल्स फेज कहलाता है, जहां वो मामूली खाते हैं, सादा जगह पर रहते हैं, पुरानी चीजों से काम चलाते हैं और हर मुमकिन सहूलत की कुर्बानी देकर अपने ख्वाब को पालते हैं। ये कुर्बानी वक्ती होती है मगर इसका फायदा देर पा। आपके दोस्त आज आप पर हंसेंगे मगर कल वही आपकी कामयाबी की दास्तान सुनाएंगे। चंद अमली असूल: आज महंगा फोन ना लें, कल अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर खरीदें। आज छोटे अपार्टमेंट में रह लें, कल अपनी बिल्डिंग खरीदें। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें, कल अपनी ड्राइवर से कहें। आराम नहीं, मिशन अहम है। पहले खुद को तकलीफ देना सीखें ताकि कल आप दूसरों को राहत दे सकें। कुर्बानी नंबर 13, पसंद किए जाने की ख्वाहिश। हर किसी को खुश करने की कोशिश खुद को तबाह करने की सबसे खामोश शक्ल है। अगर आप हर एक को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो एक बात तय है, आप खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अमीर और कामयाब लोगों की जिंदगी में ये सबसे बड़ी ज़हनी कुर्बानी होती है। वो अपनी तवज्जो अवामी तालियों से हटाकर अपनी तरक्की और विजन पर लगाते हैं। तहकीक से साबित है कि कामयाब अफराद अक्सर डिसएग्रीएबल, साफगोर असूली होते हैं, यानी वो लोगों की खुशनुदी की कीमत पर अपने मिशन से समझौता नहीं करते। ये कुर्बानी इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ देती है जब आप देखते हैं कि आपके करीबी लोग आपकी तब्दीली को गलत समझ रहे हैं या आपकी बेनियाजी को गुरूर तस्वर कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है, हर बड़ा काम करने वाले को कुछ अरसे के लिए अकेला होना ही पड़ता है। कामयाबी पसंदीदगी से नहीं, फैसलों से आती है। कामयाब लोगों को आखिर में सब पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा होता है जिसे सब चाहते हैं। असर, इख्तियार और नतीजा। आपकी तवानाई कीमती है, उसे हर एक को खुश करने की बजाय इन कामों पर सर्व करें जो आपको कामयाबी के करीब लाते हैं। याद रखें, लोग आपको तब पसंद करेंगे जब आप पहले खुद को अहम बनाएंगे। कुर्बानी नंबर 14, गुरूर। गुरूर वो दीवार है जो कामयाबी से पहले खड़ी होती है। अगर आप वाकई अमीर और कामयाब होना चाहते हैं तो एक सच्चाई कबूल करना होगी। गुरूर सबसे पहले कुर्बान करना पड़ता है। कई अजीम लोगों ने अपनी कामयाबी की इब्तिदा अदना तरीन नौकरियों से की। कोई रेस्टोरेंट में बर्तन धोता रहा, कोई डिलीवरी बॉय बना और किसी ने स्टोर पर शिफ्टों में काम किया, सिर्फ इसलिए कि अपने ख्वाब को जिंदा रख सके। लेकिन वो लोग जो ये कहते रहे, मैं ये काम नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, वहीं के वहीं रह गए।
तहकीकात बताती हैं कि कामयाब लोग नताइज पर फोकस करते हैं, ना कि ज़ाहरी हसीयत पर। वो जानते हैं कि आज जो काम छोटा लग रहा है वही कल का बड़ा कदम बनेगा। गुरूर इंसान को दूसरों की नजरों में बड़ा बनाता है, लेकिन आजिज़ी उसे कामयाबी के रास्ते पर ले जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कल लोग आपको सलाम करें तो आज काम करें, चाहे वो छोटा हो, सख्त हो या बेइज्जती वाला लगे। याद रखें, दुनिया सिर्फ उसकी कदर करती है जिसने खुद को साबित किया हो, और खुद को साबित करने का पहला कदम है गुरूर को तोड़ना। कुर्बानी नंबर 15, फौरी ख्वाहिशात। जिसने खुद को रोकना सीख लिया वही जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकता है। कामयाब होने के लिए सबसे अहम कुर्बानी अपनी फौरी ख्वाहिशात को मौखर करना है। फौरी खुशी की ख्वाहिश, चाहे वो एक महंगा मोबाइल हो, तफरीह हो या सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना, हमें असल मकसद से हटा देती है। माहिरीन नफ्सियात ने इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन का नाम दिया है, यानी वक्ती ख्वाहिशात को रोक कर मुस्तकबल की बड़ी कामयाबी का इंतजार करना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मार्शमैलो टेस्ट इसकी सबसे मशहूर मिसाल है, जहां उन बच्चों ने जो थोड़ी देर सब्र कर गए जिंदगी में ज्यादा कामयाबियां हासिल की। दौलतमंद और कामयाब लोग जानते हैं कि आज अगर मैं अपने नफ्स पर काबू पा लूं तो कल मैं वो जिंदगी जी सकूंगा जिसका दूसरों को ख्वाब भी नहीं। फौरी ख्वाहिशात दरअसल वो जाल हैं जो लम्हाती खुशी देकर मुस्तकबल की कामयाबी छीन लेते हैं। कामयाब लोग ये सवाल खुद से रोज करते हैं, ये जो मैं अभी चाह रहा हूं, क्या ये मेरे असल मकसद को आगे ले जाएगा या पीछे धकेलेगा? आपको हर दिन अपने नफ्स से ये कहना है, अभी नहीं, बाद में, क्योंकि मैं मामूली नहीं बड़ा सोचता हूं। यही वो ज़हनियत है जो अमीर बनाती है। ये वीडियो बनाना आसान नहीं था। इसमें वो तमाम बातें शामिल हैं जिन्हें शायद आप सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन यही हैं पैसे के खेल के मौजूदा असूल। आप शायद किसी आसान हल की उम्मीद कर रहे थे, कोई जादुई फार्मूला जो आपको फौरन अमीर बना दे, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग वाकई उस सतह तक पहुंचते हैं वो इंतहाई ज़हीन, बाहिम्मत, नज़्म ज़ब्त रखने वाले, मकसद पर मरकूज और कुर्बानियां देने वाले लोग होते हैं। उनकी कामयाबी के पीछे सख्त मेहनत और बड़ी कीमत होती है। तो अगर आप वाकई ये सब हासिल करना चाहते हैं तो 2 बार सोचें कि आप कितनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर आप अभी सब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को दोबारा देखें और सोचें कि किन पहलुओं पर आप खुद को बेहतर बना सकते हैं ताकि अपने माली अहदाफ के करीब जा सकें। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में वाकई कुछ कीमती सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इसे किसी ऐसे शख्स से जरूर शेयर करें जो आप ही जैसा सोचता हो। अब एक सवाल, क्या आपके ख्याल में अमीर बनना और अपने ख्वाबों की जिंदगी जीना इन सब कुर्बानियों के काबिल है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, इससे पहले कि वीडियो को खत्म करें, एक बोनस पॉइंट, क्योंकि इसके बगैर ये वीडियो अधूरी रहेगी। नंबर 16, कलील मुद्दती कुर्बानियां बमुकाबला तवील मुद्दती इनामात। जब आपने ये सारी फहरिस्त देखी होगी तो आपके जहन में आया होगा, आखिर कौन अक्लमंद होगा जो अपने खानदान या सुकून को सिर्फ दौलत के लिए कुर्बान करे। लिहाजा इस वीडियो को गलत ना समझा जाए, हम ये बात वाजे करना चाहते हैं। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, एक मोहब्बत भरा खानदान, अच्छे दोस्त, सेहतमंद तर्ज जिंदगी, इज्जत और आराम। बस शर्त यह है कि आप उन सब को चंद साल के लिए मौखर करें। मुतबादल क्या है? एक ऐसी जिंदगी जो अधूरी हो, एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा इस सवाल के गिर्द घूमती रहे कि अगर मैं कोशिश करता तो क्या होता, और दूसरों की मेहनत को किस्मत या नसीब कहकर खुद को तसल्ली देता रहे। यही है असल सच। सब कुछ हासिल करने के लिए आपको सब कुछ देना पड़ता है। जब वो सुस्त हों तब आप मेहनत करें ताकि कल आप वो जिंदगी गुजार सकें जो वो कभी नहीं गुजार सकते। हमेशा हैरत होती है कि कितने लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते ही नहीं। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी है तो कमेंट्स में लिखें, आई कैन डू इट। हम आपके कमेंट्स का जरूर जवाब देंगे। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे साथ कुछ वक्त गुजारा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। और हमारा नारा याद रखें, आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।